ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید مستحکم، روپے کے مقابلے میں ڈالر 2 روپے 5 پیسے مزید سستا۔ انٹر بینک میں ڈالر کم ہو کر 304 روپے 95 پیسے، جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں 302 روپے کا ہو گیا۔ معاشی ماہرین کے مطابق آنے والے دنوں میں ڈالر مزید سستا ہو سکتا ہے۔ افغان حدود سے دہشت گردوں کا چترال میں 2 پاکستانی چوکیوں پر حملہ، سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی، 12 حملہ آور ہلاک، بڑی تعداد میں زخمی۔ فائرنگ کے تبادلے میں دھرتی کے 4 سپوت شہید۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم، ISPR۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے اغبرگ میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی، کل عدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے 5 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد کچلاک میں ایگل اسکواڈ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے ٹارگیٹنگ کلنگ میں ملوث تھے۔ ترجمان CTD بلوچستان۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی گوادر ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید لیفٹیننٹ کمانڈر حمزہ عابد کے گھر آمد۔ شہید کے والد ریٹائرڈ کمانڈر عابد حسین خان سے ان کے بیٹے کی شہادت پر اظہار تعزیت، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی بھی ہمراہ تھے۔ یوم فضائیہ بھرپور قومی اور ملی جوش و جذبے سے آج منایا جا رہا ہے۔ 7 دسمبر کو پاک فضائیہ نے فضائی جنگ میں بھارتی ایئر فورس کو ناکچنے چبوائے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے صرف 7 ستمبر کے دن 31 بھارتی جنگی طیارے تباہ کیے، جس کے بعد بھارتی ایئر فورس کے تباہ ہونے والے جہازوں کی تعداد 53 ہو گئی۔ بھارتی ترجمان نے بھی پاک فضائیہ کی برتری کا اعتراف کیا۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کے مزار پر پروقار تقریب۔ ایئر آفیسر کمانڈنگ صدرن کمانڈ ایئر وائس مارشل نے مزار پر حاضری دی، مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔ شہید کے درجات کی بلندی اور ملک و قوم کی حفاظت کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی دفاعی خدمات کے شعبے کے لیے 40 ارب روپے کی تخلیقی ضمنی گرانٹ کی منظوری۔ قومی فضائی کمپنی کے ڈی اسٹرکچرنگ پلان اور اخراجات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ڈیلر مارجن میں 1 روپے 64 پیسے اور آئل کمپنیز کے منافع میں 1 روپے 87 پیسے فی لیٹر کی منظوری۔ کمیٹی کا یہ اضافہ اوگرا کے متعین قواعد کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ یوم دفاع پر سول سوسائٹی اہل قلم اور تاجر برادری کا جناح ہاؤس کا خصوصی دورہ۔ دشمن کی تخریب کاری کے نتیجے میں جناح ہاؤس کی تباہی کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ سن 1965 کو پوری قوم پاک فوج کی شانہ بشانہ تھی، آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ شرکاء کا اظہار خیال۔ یوم دفاع کے موقع پر پاک آرمی کے زیر اہتمام ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کی نمائش اور مختلف پروگرامز کا انعقاد۔ بچوں کو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ طلباء اور طالبات کے جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں خصوصاً ٹینکوں میں دلچسپی۔ یوم دفاع کے حوالے سے بچوں نے ٹیبلوز، ملی نغمے اور تقاریر بھی پیش کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا دورہ یوکرین۔ کیو میں صدر زیلنسکی، وزیر اعظم اور یوکرینی وزیر خارجہ سے ملاقاتیں۔ یوکرین کے لیے مزید $1 ارب فوجی امداد کی فراہمی کا اعلان۔ یوکرین کی اقتصادی اور دفاعی امداد جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ۔ G20 اجلاس اور بھارت کی جھوٹی نمود و نمائش۔ عالمی سطح پر بھارت کا منافقت سے بھرا مصنوعی چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ دہلی میں قائم کچی آبادیوں کو ڈھانپ کر G20 کے پوسٹرز لگا دیے گئے۔ مکینوں کی نقل و حرکت بھی محدود۔ وسطی دہلی میں تمام پبلک ٹرانسپورٹ اور دکانیں بند۔ بھارت کو ہندوتوا ریاست بنانے کی کوششیں تیز تر۔ مودی حکومت کا ہندو ووٹرز کی حمایت کے لیے ملک کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ نام انڈیا سے تبدیل کر کے بھارت رکھا جائے گا۔ آئین میں ترمیم ہوگی۔ ہندوتوا پالیسی پر عمل پیرا BJP حکومت نے مسلم شناخت کے کئی شہروں کے نام پہلے ہی تبدیل کر دیے ہیں۔ برازیل میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے وسیع علاقے میں تباہی، 36 افراد ہلاک، ہزاروں متاثر۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر جانیں بچائیں۔ لینڈ سلائڈنگ سے املاک کو بھی نقصان، ریسکیو آپریشن جاری۔ ملک بھر میں نوازہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہلم آج مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں روایتی جلوس اور تعزیے برآمد کیے جائیں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی۔
पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 82 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 93 मरीज ज़ेर इलाज, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक। डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें और डेंगू की रोकथाम के लिए शहरी महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। सेक्रेटरी सेहत अलीजान खान। मारूफ अदीब, ड्रामा निगार और दानिश्वर अशफाक अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। अदबी खिदमत पर अशफाक अहमद को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज के एजाजात से भी नवाजा गया। अशफाक अहमद की तसनीफ में एक मोहब्बत 100 अफसाने, उजले फूल, सफर दर सफर, खेल कहानी, एक मोहब्बत 100 ड्रामे और तोता कहानी जैसे बेहतरीन शाकार शामिल हैं। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान का फातहाना आगाज। लाहौर में पाकिस्तान की बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त। हारिस राउफ की 4, नसीम शाह की 3 विकेटें, इमाम उल हक के 78 और मोहम्मद रिजवान के नॉट आउट 63 रन। बाबर आजम ने बतौर कप्तान तेज तरीन 2000 वनडे रन का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ डाला। कोहली ने 2000 रन 36 इनिंग्स, जबकि बाबर आजम ने 31 इनिंग्स में बनाई। इवेंट्स देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। एशिया क्रिकेट कप टूर्नामेंट में आज और कल आराम का दिन। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें सुपर 4 मरहले में अपने अगले मैचेस के लिए श्रीलंका रवाना। 2 दिन के वक्फे के बाद सुपर 4 मरहले के दूसरे मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें 9 सितंबर को कोलंबो में मध्य मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला इतवार 10 सितंबर को कोलंबो में ही होगा। को शिकस्त दी। मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे एक अच्छी खबर से। ओपन मार्केट में आज तीसरे रोज भी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी देखी जा रही है। आज डॉलर 14 रुपए कमी के बाद 302 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि मजमूई तौर पर 3 रोज के दौरान डॉलर की कदर में 28 रुपए से ज्यादा की कमी देखी गई। इंटर बैंक में भी डॉलर कम होकर 304 रुपए 95 पैसे का हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली, अपडेट कीजिएगा, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो करेंसी मार्केट में जो डॉलर है उसकी कदर जो है वो काफ़ी गैर मुस्तकम हो रही है। इस वक्त जो एक डॉलर की ओपन मार्केट में एक जो उड़ान थी उसको एक कट लग चुका है, वो उड़ान अब कटने या कम होने शुरू हो गई है। अब जो डॉलर है वो काफ़ी हद तक गिरावट का शिकार हो रहा है। और जो गुज़श्ता 3 दिन से आपने देखा कि करेंसी मार्केट में ओपन मार्केट में जो डॉलर है वो तकरीबन कोई 330 से 32 तक जा पहुंचा था। जो आज जो है वो कंटिन्यूसली गुज़श्ता 3 दिन से इसमें कमी आ रही थी और आज जो है 302 तक पहुंच रहा है। तो मजमूई तौर पर कोई 28 से 30 रुपये जो है वो डॉलर की जो है कदर में कमी हुई है और रुपया काफ़ी मुस्तहकम हुआ है। ये यकीनन हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों का और जो क्रैकडाउन है उसका नतीजा है, जो अब करेंसी मार्केट में बिल्कुल नज़र भी आ रहा है और जो सरमाएकारों के लिए, मुल्की मईशत के लिए बिल्कुल एक अच्छी खबर है। इसी तरह जो आप इंटर बैंक में देखेंगे तो आज इंटर बैंक में भी जो है डॉलर जो है वो मज़ीद गिरावट का शिकार हुआ है। तकरीबन कोई 2 रुपये 5 पैसे तक जो है वो डॉलर गिरावट का शिकार हुआ है, जिससे जो है वो रुपया मुस्तहकम हो गया है। 304 रुपये 95 पैसे तक जो है अब डॉलर की जो है वो कदर हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर करती हैं कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से भरपूर इक़दाम कर रही है और सरमाएकारों के साथ भी और जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके साथ जो बातचीत हुकूमती सतह पर हुई है तो वो सारी चीज़ें, उसके बाद एक क्रैकडाउन के बारे में भी बात की गई और जो मसनूई किस्म की एक जो डॉलर में जो है वो कीमत में बढ़ावा आया और जो कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो इस करेंसी मार्केट का फ़ायदा उठा के डॉलर को जो है वो उसकी शॉर्टेज पैदा कर रहे थे, उसको रोकने की कोशिश की गई है हुकूमत की जानिब से, स्टेट बैंक की जानिब से। तो उसकी सारा जो इम्पैक्ट है वो आज हमें गुज़श्ता 3 दिन से कंटिन्यूसली करेंसी मार्केट में बिल्कुल आया नज़र आ रहा है और आज
ڈالر کی جو ہے وہ کم ہو کے تقریباً 28 سے 30 روپے کم ہو کے 302 روپے تک اوپن مارکیٹ میں پہنچ گیا ہے، اور انٹر بینک میں بھی اسی طرح 2 روپے 5 پیسے کی جو ہے وہ کمی واقع ہوئی. یہ سارے جو اشاریے ہیں، یہ سارے جو امپیکٹ ہے، یہ پورا امپیکٹ ہماری معیشت پہ بھی آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹرس ہیں، جو ان کا بھی جو ایک اعتماد ہے وہ بحال ہو رہا ہے، کیونکہ جب ڈالر جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہوگا، روپیہ جب مستحکم ہوگا تو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ کافی ریلیکسیشن کی طرف جائے گا، جس سے ہم باہر سے جب چیزیں کو منگائیں گے، خاص طور پہ پیٹرولیم مصنوعات یا باقی جو انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری، باقی جو انڈسٹری جو ہے اس کے لیے جو کافی را مٹیریلس جو باہر سے آتا ہے تو وہ کافی ہمیں پھر سستا پڑے گا، اس سے جو ہے وہ اس کے امپیکٹ جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے ہماری معیشت پہ پڑیں گے. اب جب بھی ملک کو اس طرح کے چیلنجز کسی بھی دنیا میں ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی ایک اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوتا ہے، اور عوام جو ہے وہ اگر چاہے تو پیٹرول کی جو گاڑیوں میں جو ہے عام درفت اس کو کم کیا جا سکتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے کافی بہتری آ سکتی ہے، اور بجلی کی جو بچت ہے اس پہ اگر عمل کیا جائے تو بھی کافی جو ہمارا پیٹرولیم کی مصنوعات میں جو بل ہے وہ کافی کم ہو جائے گا. اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ خاص طور پہ جو بڑے شہروں میں حکومت کی جانب سے جو ٹرانسپورٹیشن کا نظام جو متعارف کرائے گا اس کو زیادہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کراچی جیسا بڑا شہر جس میں پیپلز بس سروس تو متعارف کرائی گئی ہے، اس کو جدید اور ماڈرنائز اور جو ڈیجیٹلائزیشن کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو گاڑیوں میں اس وقت لوگ سفر کر رہے ہیں وہ سفر کریں جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں. جب یہ پبلک ٹرانسپورٹ میں کریں گے تو یقین جو پیٹرول کی ایک جو کھپت ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی، جس کا امپیکٹ ہماری جو معیشت ہے اس پہ پازیٹیولی آئے گا. بہت شکریہ علی اصغر ارباب آپ کا. بڑی خوش آئند خبر ہے معیشت کے لیے کہ مسلسل 3 روز سے ڈالر کی گراوٹ دیکھ رہے ہیں ہم، اور مجموعی طور پر 3 دنوں میں ڈالر 28 روپے تنزلی کا شکار ہوا ہے اور روپیہ مزید مستحکم ہوا ہے. اوپن مارکیٹ میں بھی آج تیسرے روز ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے. مزید معاشی ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ان کی آراء بھی لے لیں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جنرل سیکرٹری کرنسی ایسوسی ایشن ظفر پراچا صاحب نے. ظفر صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وجہ کیا بنی ہے؟ ڈالر 3 روز میں مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں گراوٹ کا شکار ہے اور روپیہ مزید مستحکم ہوا ہے. دیکھیے جناب، مین وجہ تو یہ بنی ہے جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے بزنس مین وغیرہ سے جو انہوں نے میٹنگ کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے لوگوں کو اعتماد دلایا کہ آپ اپنی کرنسی پہ اعتماد رکھیں، اور انہوں نے ہر شعبے میں بات کی ہے. انہوں نے اسمگلنگ پہ بات کی ہے، ٹیکس بیس پہ بات کی ہے، انہوں نے فورن انویسٹمنٹ پہ بات کی ہے، ہر شعبے کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، اور ان سے ملنے کے بعد لوگوں میں ایک نیا اعتماد آیا ہے، نیا جوش ولولہ آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے انلیگل منی ایکسچینجرز کے خلاف اور اسمگلرز کے خلاف، تو اس سے بھی بڑا فرق پڑا ہے. اور جو ہمارا انٹر بینک کے اندر جو بینکس مینوپولیشن کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ بہت عرصے کے بعد آج یہ گڈ سائن آیا کہ انٹر بینک میں بھی ریٹ کم ہوا. اوپن مارکیٹ میں تو بہت بڑا فرق آیا، تقریباً 30 روپے کم ہو چکے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ بنی ہے. اور اگر انٹر بینک کم نہیں ہوگا تو یہ سینٹیمنٹ چینج ہو جائیں گے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ماضی کی طرح جو ہم کریک ڈاؤن کرتے رہیں اور وقتی طور پہ چیزیں ٹھیک ہوتی رہی ہیں تو ایسا نہ ہو. اور اس کے لیے ہم کو جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے، اور خاص طور پہ ہم کو اپنی پالیسیز ری اسٹرکچر کرنی ہوں گی. اگر ہم اپنی پالیسیز کو نہیں ٹھیک کریں گے تو یہ وقتی فائدہ ہوگا، اور بلکہ اس کا ان چیزوں کا پھر زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ اگر جو آپ کا روپیہ ہے وہ سیسا کی طرح اوپر نیچے چلے اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ کی طرح، تو اس کے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. کیونکہ جتنے بھی فائنانشل ایشوز ہوتے ہیں اس کی بڑی لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. جس نے بھی کوئی فیکٹری لگانی ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے تو وہ فیزیبلٹی ساری آؤٹ ہو جاتی ہے. خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو میں نے اکثر آپ کے ٹی وی چینل پہ کہا ہے، وہ اب بڑی ورڈ نظر آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ بینک ہے اس کا بھی رول بڑا پازیٹیو ہے. وہ یہ 2 ادارے جو ہے نا کام کرتے نظر آتے ہیں. باقی جو حکومتی دوسری ادارے ہیں ان کی پالیسیز آپس میں کنفلکٹ ہیں اور وہ اتنے ویجیلنٹ نہیں ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ فورن ایکسچینج کی جو پالیسی ہے اس کو ری اسٹرکچر کیا گیا، تو اس سے بھی جو ہمارے ہاں جو کنفیوژن ہے ایکسچینج کمپنی اے بی فرینچائز، ایک عجیب قسم کی جو کھچڑی پکی ہوئی تھی، وہ بھی اس میں بھی بہتری آئی گی. کیونکہ کسی کا اسٹیک کم تھا، کسی کا اسٹیک زیادہ تھا، تو اس وجہ سے
جو ہمارے جو کنٹرولز تھے وہ تھوڑے ویک تھے. اور پالیسیز کی ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا, صرف فارن ایکسچینج کی بات نہیں کروں گا, میں اوور آل ٹیکس بیس کی بات کروں گا. وہ ہم کو بڑھانا ہے, ٹیکس ریٹ کم کرنا ہے, ہم کو جو اپنی امپورٹ کی جو آئی ٹی پی ویلیو ہے انڈر انویسٹنگ ختم کرنے کے لیے وہ اپنی پرائزز بڑھانی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی امپورٹ ڈیوٹیز بھی کم کرنی ہے. اسی طرح جو ہمارا اوورسی پاکستانی ہے اور ایکسچینج کمپنیز ہے ان کو ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دینا ہوگا, کیونکہ جو ہمارے ایکسپورٹر حضرات ہیں ان کی کوئی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے. 25 سے 30 سال کے اندر ہم ان کو 30 سے 35% ریبیٹ دیتے ہیں اور انسینٹیو, لیکن اس کے باوجود ان سے کہیں بہتر اوورسی پاکستانی کی کارکردگی ہے جو ان کی ریمیٹنس ایکسپورٹ سے بڑھ چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہم نے ایک فورن ایکسچینج قوانین پہ سخت کی ہم نے قوانین اکتوبر 2022 میں, اس سے بھی وہی غلطی سری لنکا نے کی تھی. اس کی وجہ سے ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزرو, فورن ایکسچینج ریمیٹنس, ہوم ریمیٹنس گر گئی, اور وہ ایکچولی گری نہیں, وہ ڈائیورٹ ہو گئی گرے مارکیٹ میں. تو ہم کو اس کو بھی ریسٹرکچر کرنا ہے, صرف ری وزٹ نہیں کرنا, ریسٹرکچر کرنا ہے. پھر ہماری جو ٹریڈ پالیسی ہے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور جو امیگریشن پالیسی ہے ہمسایہ ممالک کے ساتھ, وہ ٹھیک کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے, کیونکہ جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں مختلف وہ آپس میں کنفلکٹ کرتی ہیں اور ان کو راستہ ملتا ہے گرے مارکیٹ والوں کو, اسمگلنگ آف گڈز والوں کو, اور آپ کا جیسے چینی, چاول, گندم جو ادھر ادھر اسمگل ہو جاتا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو, اب یہ وقت ہے ناؤ اور نیور, اگر ہم ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ وقتی ثابت ہوگا اور پہلے سے زیادہ پاور سے یہ لوگ سر اٹھائیں گے. تو یہ میرا کہنا ہے کہ اب وقت ہے کہ ہم ان چیزوں کو مل بیٹھ کے سب لوگ ٹھیک کریں. صاحب, ایک معاشی ماہر کے طور پہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا خاص طور پر سرمایہ کار ہے, کیا اس کا اعتماد بڑھے گا اس سے؟ کیونکہ جو بات جس طرح آپ نے اپنے گفتگو کے ابتدائیے میں فرمایا کہ آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی تاجروں کے ساتھ, اس میں جو انیشیٹو لیے گئے اور جس طرح انہوں نے کہا اس کے اثرات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس کو دیر پا رکھنے کے لیے, مستحکم رکھنے کے لیے ایک تو کیا ہو سکتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ یہ تاجر برادری جو ہے اس کو کتنا بوسٹ اپ کرے گی, اس کے مورال کو, یہ تمام چیزیں؟ دیکھیے جناب, جو ان کا مورال بوسٹ ہوا ہے وہ بہت زبردست ہوا ہے, لیکن ابھی ہم نے کل پرسوں دیکھا کہ جو فورن ایکسچینج کی جو انہوں نے ڈرائیو چلائی ہے, تو کچھ جو بیچ میں لوگ ہوتے ہیں اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے, سرکاری اہلکار, انہوں نے ایکسچینج کمپنیز کے اندر آ کے بیٹھ گئے. اس سے ایک نئی خوف ہراس کی فضا اور لوگ نہیں آئے. پھر جو کاروباری لوگوں کا مورال ہائی ہوا ہے, جتنے لوگ ان سے مل کے آئے ہیں ان کا مورال بہت ہائی ہے, کیونکہ چیف صاحب نے ڈیٹیل سے بات سنی ہے, 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ. انہوں نے کہا جس نے جو بولنا ہے بولے, جو سوال کرنا ہے سوال کرے, میں بھی آپ سے سوال کروں گا, آپ بھی میرے سوال کا جواب دیں. تو اوور آل لوگوں کا مورال ہائی ہے, انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. ڈالرائزیشن کے اوپر بات ہوئی, جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے تقریباً 30 روپے ڈالر پہ کم ہوگا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ترقی کا نیا سفر شروع ہونے والا ہے, لیکن اگین اپنے خدشے کا بھی اظہار کروں گا کہ کہیں یہ خدا نہ کرے یہ چیزیں ہائی جیک نہ ہو جائیں اور چیف صاحب تک جو ہے نا صحیح باتیں نہ پہنچیں, اور جو بہت سارے جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں یا جو جن کے اپنے ذاتی مقاصد ہیں وہ کہیں ان کو مس گائیڈ یا مس لیڈ نہ کرتے, کیونکہ پاکستان اس وقت چاروں طرف اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے گھرا ہوا ہے. جب ہم اسمگلنگ روکتے ہیں اپنے بارڈرز پہ تو وہاں پہ دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے, فائرنگ شروع ہو جاتی ہے, ہمارے جو جوان ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں. کل بھی ہم نے دیکھا کہ افغان پاکستان بارڈر پہ جھڑپ ہوئی ہے. تو ایکچولی وہ کسی کاز کے لیے نہیں ہے, وہ کاز ہے پیسہ بنانا. جب ہم اسمگلنگ روکتے ہیں, اپنی بارڈر سیل کرتے ہیں, تو وہ جو شر پسند ہیں وہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ افغان پولیس کی شکل میں ہوں, چاہے ایران بارڈر فورسز کی شکل میں ہوں. تو یہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہیں. دونوں کو حکومتی سطح کے اوپر یہ چیزیں اجاگر کرنی چاہیے, اور نہ صرف دونوں حکومتوں سے, انٹرنیشنلی بھی کرنا چاہیے, کیونکہ جو ہمارے اینیمی کنٹری ہیں نیبرنگ, وہ بھی اس میں انوالو ہیں. ہماری معیشت کے اندر جب ہمارے ہاں ڈالر سٹیبل ہونے لگتا ہے تو انڈیا پشاور میں خریداری شروع کر دیتا ہے, یا افغانستان کے اندر وہ ریٹ بڑھا دیتا ہے.
تو یہ ان سب چیزوں کے لیے یہ جو ہم کام کر رہے ہیں تو یہ تو فرسٹ ایڈ ہے، ایمرجنسی ہے، وقتی ہے. ہم کو اپنی اگین میں کہوں گا پالیسیز کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ جو ہماری انرجی ادھر ادھر بے مقصد ضائع ہوتی ہے وہ نہ ہو. جیسے کہ میں بات کروں گا، آپ کے یہاں سیلاب آتے ہیں، پوری قوم ادھر لگ جاتی ہے. ایکچولی تو آپ نے ڈیم بنانے، تو آپ کی جو پالیسیز ٹھیک نہیں ہے، وقت پہ آپ کام نہیں کرتے، تو پھر آپ جو ہے نا اب ادھر ادھر ہر دن آپ کے پاس ایمرجنسی کریٹ رہتی ہے. اگر آپ پلاننگ کر کے چلیں گے، چیزوں کو ٹھیک کر کے چلیں گے، اسٹیک ہولڈرز کو تمام کو لے کے بیٹھیں گے، ان کو کانفیڈنس میں لے کے اور سب کی بات سن کے اور سنا کے، خالی سن کے نہیں سنا کے بھی، تو تب بات انشاءاللہ پاکستان کے، میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ فائنینشیل کریڈینشلز بہترین ہے. $60 بلین کی ہماری انکم ہے اور $60 بلین کی ہی ہماری امپورٹ ہے. تو اگر ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کو ٹیگ کر دیں، یعنی کہ صرف وہ شخص امپورٹ کر سکتا ہے جو ایکسپورٹ کرے، $1 لاکھ کا ایکسپورٹ کرے اور $2 لاکھ کی امپورٹ کرے، تو اپنے آپ امپورٹ کم ہوگی، ایکسپورٹ بڑھے گی، اور جو لوگ ایکسپورٹ نہیں کرتے وہ بھی ادھر آئیں گے اٹریکٹ ہو کے، کیونکہ ان کا جو امپورٹ کا لائسنس ہے وہ پریمیم پہ بکے گا. پھر اس کے ساتھ جو میں نے کہا کہ آپ کو اوورسی پاکستانی کو ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دینا ہے، تو ان کو جو وہ حوالہ مارکیٹ میں نہ جائیں، کیونکہ انٹر بینک اور گرے مارکیٹ کا کبھی $35 کا کبھی $30 کا فرق ہوتا ہے. تو آپ ڈائریکٹ انسینٹیو ان کو دے دیں تاکہ ہم حوالے والے سے لڑ سکیں. پھر ایکسچینج کمپنی جو تقریباً $6 سے $7 بلین دیتی ہیں پاکستان میں، تو ان کو بھی ان جو انلیگل فورسز ہیں یا جو ہے ان سے بھی مقابلہ کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ایک یہ بہت بڑا سیکٹر ہے جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے. آپ کے توسط سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں انلیگل فورن ایکسچینج کا جو بزنس ہے بہت ہی لوکریٹو ہے اور انسٹنٹ پروفٹ حاصل شکریہ آپ کا. جنرل سیکرٹری کرنسی ایسوسی ایشن اور ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود تھے. اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے اور یہ بہت ہی پاکستانی معیشت کے لیے خوش آئند خبر ہے. نگراں وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی سربراہی میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ڈیلرز مارجن میں $1.64 اور آئل کمپنیز کے منافع میں $1.87 فی لیٹر اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے. یہ اضافہ بالترتیب 41 پیسے اور 47 پیسے کے حساب سے 15 روز پر مشتمل 4 مساوی اقساط میں کیا جائے گا. کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اضافہ اوگرا کے متعین کردہ قواعد کی بنیاد پر کیا جائے گا. کمیٹی نے قومی فضائی کمپنی کے ری اسٹرکچرنگ پلان اور اخراجات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا. ای سی سی نے ادارے کے ذمہ کی جانے والی ادائیگیاں مؤخر کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے خزانہ ڈویژن اور اسٹیٹ بینک کو پی آئی اے کی تنظیم نو کے ٹھوس پلان کو حتمی شکل دینے اور مالیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون کرنے کی ہدایت کی. ای سی سی نے دفاعی خدمات کے شعبے کے لیے $40 ارب کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی. نگراں وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی نیچکاری کا پہلا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. کمیٹی نے ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس سروسز انٹرنیشنل ہوٹل اسٹیل ملز ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن روز ویلٹ ہوٹل پی آئی اے آر ایل این جی پاور پلانٹس اور 10 ڈسکوز سمیت خسارے میں چلنے والی سرکاری اداروں کے نیچکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا. سی سی او پی نے ڈسکوز کے انتظامی امور میں نجی شعبے کی شراکت سے متعلق قابل عمل منصوبہ پیش کرنے کے لیے نگراں وزیر توانائی کی سربراہی میں کمیٹی بھی تشکیل دی. چترال میں پاک افغان سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں دھرتی کے 4 بہادر سپوت بھی مادر وطن پر قربان ہو گئے. تفصیلات کے مطابق پاک افغان سرحد کے قریب چترال کے علاقے کیلاش میں جدید ہتھیاروں سے مسلح دہشت گردوں کے ایک بڑے گروہ نے پاکستان کی 2 فوجی چوکیوں پر حملہ کیا. افغانستان کے 2 صوبوں نورستان اور کنڑ میں دہشت گردوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے پاکستان نے عبوری افغان حکومت کو بروقت آگاہ کر رکھا تھا. اسی خطرے کے پیش نظر پاکستان کی پوسٹوں پر تعینات سیکیورٹی فورسز مکمل چوکس اور چوکنا تھیں. دہشت گردوں کے ایک بڑے گروہ کی جانب سے جدید ہتھیاروں سے پاکستانی پوسٹوں پر حملے کے جواب میں سیکیورٹی فورسز نے بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی کی. علاقے میں دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے سینیٹائز آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور اس طرح کی قربانیاں ہمارے جوانوں کے عزم و حوصلے کو مزید تقویت دیتی ہیں. چترال کے بہادر عوام بھی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ان کا بھی یہی عزم ہے کہ وہ دہشت گردوں کو علاقے کا امن داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دیں گے. امید ہے کہ افغان حکومت پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی کسی کو اجازت نہیں دے گی.
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि चित्राल में पाक अफगान सरहद पर फौजी चौकियों पर दहशतगर्दों के हमले को हमारी अलर्ट फोर्सेस ने पसपा कर दिया। अपने एक ट्वीट में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हमले में दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द हमले में 4 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा अज़्म गैर मुतसलसल है और हमारे अवाम हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। उधर कोयटा के नवाही इलाके अकबर्ग में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलूचिस्तान ने कार्रवाई करते हुए 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। तर्जुमान CTT बलूचिस्तान के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम TTP से था। हलाक दहशतगर्द कुचलाक में ईगल स्क्वाड पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। तर्जुमान CTT बलूचिस्तान के मुताबिक बरामद की गई ममनू अशिया में खुदकुश जैकेट्स, राइफल्स, 5 दस्ती बम, धमाका खेज मवाद शामिल था। याम फ़ज़ाइया भरपूर कौमी और मिली जोशो जज्बे से आज मनाया जा रहा है। 7 सितंबर को पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई जंग में भारतीय एयरफोर्स को नाको चने चबवाए। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने सिर्फ 7 सितंबर के दिन 31 भारतीय जंगी तैयारे तबाह कर दिए, जिसके बाद भारतीय एयरफोर्स के तबाह होने वाले जहाज़ों की तादाद 53 हो गई। भारतीय तर्जुमान ने भी पाक फ़ज़ाइया की बरतरी का एतराफ़ किया। अहम किरदार अदा करते हुए पठानकोट, आदमपुर और हुलवाड़ा के हवाई अड्डों पर हमले करके दुश्मन के 22 तैयारे मुतअद्दिद टैंक 1965 की पाक भारत जंग में जहां पाकिस्तान की बर्री और बहरी अफवाज ने नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया, वहीं पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का किरदार भी सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। पाक फ़ज़ाइया के फ़ज़ाई मार्कों के हवाले से देखेंगे खुसूसी रिपोर्ट। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 31 तैयारे तबाह किए। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के खिलाफ अपनी कार्रवाई 6 सितंबर शाम 5 बजे के बाद शुरू की और 7 सितंबर शाम 5 बजे से हुए पठानकोट, आदमपुर और हुलवाड़ा के हवाई अड्डों पर हमले करके दुश्मन के 22 तैयारे, मुतअद्दिद टैंक, भारी तोपें और दूसरा असला तबाह किया। जंग का अगला दिन पाक फ़ज़ाइया का ही दिन था। दुश्मन ने एयरफोर्स के तैयारों को इस दिन न सिर्फ पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने मार भगाया, बल्कि उनका पीछा करते हुए दुश्मन के हवाई अड्डों लुधियाना और जलंधर पर जवाबी हमले भी किए। मुजमुई तौर पर इस दिन यानी 7 सितंबर को पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 31 तैयारे तबाह किए। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के खिलाफ अपनी कार्रवाई 6 सितंबर शाम 5 बजे के बाद शुरू की और 7 सितंबर शाम 5 बजे से पहले दुश्मन के 53 तैयारे राख का ढेर बन चुके थे। इस नाकाबिले शिकस्त फ़िज़ाई बर्तरी के बाद जंगबंदी तक दुश्मन मासवाए सरहदी झड़पों के पाक फ़ज़ाइया के तसल्लुत को चैलेंज करने की जसारत न कर सका। 6 सितंबर को शुरू होने वाली जंग अमली तौर पर पाक फ़ज़ाइया 7 सितंबर को जीत चुकी थी। एयर मार्शल असर खान और एयर मार्शल नूर खान जैसे काबिल फख्र कमांडरों की जंगी हिकमत अमली के बाइस हमारे हवाबाज अपने अपने अहदाफ के हसूल के लिए दुश्मन पर झपट पड़े। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम और स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी शहीद समेत स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन, स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस शहीद ने साबित कर दिया कि हुर्मत वतन की खातिर जानों का नजराना कोई महंगा सौदा नहीं। इस जंग में मजमूई तौर पर दुश्मन के 110 जंगी तैयारे तबाह करके पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने ताकत के नशे में चूर अपने से कई गुना बड़ी जारे कुव्वत का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तानी कौम की जानिब से मिली यकजहती, नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की खातिर हर तरह का फर्क मिटाकर, इख्तिलाफ भुलाकर मुत्तहिद होकर दुश्मन को नाकों चने चबवाने का बेमिसाल अमली मुजाहिरा था। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब हुई। एयर ऑफिसर कमांडिंग सदरन कमांड एयर वाइस मार्शल ने मज़ार पर हाजिरी दी। एयरबेस मसूर के विंग कमांडर अहमद वहीद और राशिद मिन्हास शहीद के भाई अंजुम मिन्हास भी उनके हमरा थे। उन्होंने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क कौम की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआ की गई। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से हवावे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अतान सिंह की क़यादत में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम की तरक्की के इक़दाम से आगाह किया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात में 100 के करीब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मराकज़ कायम किए जा चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने हवावे की पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरवीज के हवाले से इक़दाम को सराहते हुए इस उम्मीद का इज़हार किया कि कंपनी नौजवानों और ख़वातीन के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरबियत के हवाले से हुकूमत की मुआवनत करेगी। उन्होंने हुआवे की पाकिस्तान में IT के शोबे में मजीद सरमायाकारी की ख्वाहिश का खैर मकदम करते हुए मोबाइल फोन्स की तैयारी का प्लांट लगाने की भी तजवीज़ दी।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और निजकारी डिवीजन के हवाले से आला सतह इजलास इस्लामाबाद में हुआ। शुरका से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टैक्स नेट को बढ़ाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि FBR हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला 9,415 अरब रुपए टैक्स वसूली का टारगेट पूरा करने के हवाले से पुरज़्म है। जुलाई 2023 के 534 अरब रुपए के टारगेट के मुकाबले में 538 अरब के महसूलात इकट्ठे किए गए, जबकि अगस्त 2023 के 648 अरब रुपए के टारगेट के मुकाबले में 669 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे हुए। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए FBR के डेटाबेस को बाकी इदारों के साथ जोड़ा जा रहा है। FBR 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान को सिस्टम में लाने के हदफ पर काम कर रहा है और रवा साल 1,82,000 नए टैक्स पेयर सिस्टम में शामिल हुए। इजलास को निजकारी डिवीजन की जानिब से दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया गया कि इदारों के निजकारी के हवाले से तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात की। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माशी पॉलिसियाँ तैयार हैं, जल्द अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे और उसके समारात अवाम तक पहुँचना शुरू हो जाएंगे। अवाम को मायूसी से निकालना है। एक हफ्ते में अमली इक़दामात नजर आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जितना मुस्लिम शहरी का वजीर हूँ उतना ही गैर मुस्लिम का वजीर हूँ। हमें बर्दाश्त और मजहबी हम आहंगी को फरोग देना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात वक्त पर और शफाफ हों। उन्होंने कहा कि बिजली, चीनी, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा तशवीशनाक है। चाहते हैं कि इक़दामात अवाम को नजर आएं जिससे उनकी मायूसी दूर हो सके। जमीयत उलमा इस्लाम फ़ै के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए 2018 में एजेंडे के तहत एक हुकूमत मुसल्लत की गई। कश्मीर को इंडिया के हवाले करना और इसराइल को तस्लीम करना उनका मकसद था। 1965 को हमारी कौम के अजीम सपूतों ने बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी की लाजवाल तारीख रकम की और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाकूचने चबवाए। हमने ये सबक याद रखना है और अपनी नस्लों को भी आगे याद करवाना है। आलमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क में पहले माशी अदम इस्तेहकाम और फिर सियासी अदम इस्तेहकाम लाया गया। CPEC का बैरूनी सरमायाकारी का मनसूबा खत्म किया गया। PTI हुकूमत ने मुल्क को माशी दलदल में धकेला। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PTI दौर में तमाम दोस्त ममालिक ने मदद के लिए हाथ रोके हुए थे। हमने दोस्त मुल्कों का एतमाद में लिया और खारजा पॉलिसी ठीक की। ये सारी बातें अवाम को समझने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि इंतखाबात शफाफ, मुनसिफाना और बर वक्त होने चाहिए। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में भरपूर शिरकत करनी चाहिए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि आलमी क़ुव्वतें इमरानी ग्रुप की पुष्टपनाही कर रही थीं और अब भी इसी के लिए लॉबिंग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाने वाले और पाकिस्तान को CPEC देने वाले नवाज शरीफ से दोस्त ममालिक खुश और उन पर एतमाद करते हैं। जावेद लतीफ़ ने मज़ीद कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं और उनके नताइज भी आना शुरू हो चुके हैं। स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन से मुआशी बेहतरी आ रही है। उन्होंने कहा कि चंद हफ्तों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर दिखाई दे रही है। दुश्मन तब वार करता है जब रियासत के अंदर कोई कमजोरी दिखाई दे। दुश्मन मुल्क की मईशत की सूरत हाल को देख कर वार कर रहा है। MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि रियासत मदीना सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक नारा था। चेयरमैन PTI का अपने मुकदमे में सलमान रुश्दी के वकील के इंतखाब करने के बाद सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम निगरान वज़ीर आला से गुजारिश करते हैं कि ऐसे फैसले करें जिससे साफ और शफाफ इंतखाबात हों। हम चाहते हैं इंतखाबात वक्त पर हों। 2019 में बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म हुई तो 3 सालों तक इंतखाबात नहीं कराए गए। हमारा मुतालबा है नई हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात का इनेकाद होना ज़रूरी है। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर सेहत रियाज अनवर कहते हैं सेहत कार्ड को ख़त्म नहीं किया, इसकी बेहतरी के लिए कोशिश है। हमारा सूबा मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमसे जितना हो सके इस्लाहात लाएं। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुशीर सेहत रियाज अनवर ने कहा कि गरीब लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। उनकी इस्तात के मुताबिक अस्पतालों वाले सेहत कार्ड के मुताबिक पैसे चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड के मामले पर हम इल्ज़ामात लगाए गए थे हम शायद प्राइवेटाइजेशन की जानिब जा रहे हैं, बल्कि हम सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर उसमें मजीद बेहतरी लाएंगे। उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड पर 6 माह से काम जारी है। काबीना ने कल मंजूरी दी। रियाज अनवर ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 6% आबादी रजिस्टर्ड है। हमने वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त दी है कि सेहत कार्ड के बकायाजात की मद में पैसे जल्द अज जल्द हमें दिए जाएं। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जैसे ही पैसे आते हैं हम उसके बकायाजात अदा करेंगे।
चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान की ज़ेर सदारत प्रोविंशियल टास्क फोर्स बराए इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से इजलास कोयटा में हुआ। इजलास में चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान को मुतालिका हुकाम ने स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इकदाम से आगाह किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान ने कहा कि स्मगलिंग से सूबे और मुल्क की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और चीनी और यूरिया समेत अशिया ज़रूरिया की सरहद पार स्मगलिंग किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हिदायत की कि मुतालिका महकमों और इदारों के दरमियान बेहतर कोआर्डिनेशन का मौसर निज़ाम तश्कील दिया जाए। यूरिया और चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सूबे भर में ऑपरेशन जारी रखा जाए। वफाकी हुकूमत की खुसूसी हिदायत की रोशनी में कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ज़रिए इंतजाम तमाम इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कैस्को हेडक्वार्टर कोयटा में कैस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कन्वीनर बराए रिकवरी कमेटी सरदार ज़ादा नौमान खान नासिर ने मुनक़िदा हंगामी आला सतही इजलास से खिताब में बिजली चोरी से कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैस्को एहलकार और ऑफिसर इन तमाम फीडरों की कॉम्बिंग करके बिजली चोरी का खात्मा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद में पाक बहरिया के रिटायर्ड कमांडर आमिर हुसैन खान की रिहाइशगाह पर गए और गवादर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो जाने वाले उनके साहिबजादे लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हम बहसीत कौम अपने शुहदा के मकरूज हैं। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी भी उनके हमरा थे। भारत ने पाकिस्तान को जंग का दायरा मशरक़ी पाकिस्तान तक बढ़ाने की धमकी दी है। भारतीय तर्जुमान ने एतराफ़ किया कि भारतीय फ़ौज का लाहौर सुलेमान की फ़िरोज़पुरा पर हमला नाकाम रहा और भारत को हर महाज पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। सदर अयूब खान ने पाक फ़ज़ाइया को शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया। सदर अयूब खान का कहना था कि सिर्फ इस्तिस्वाब राय ही कश्मीर में अमन ला सकता है। तर्जुमान कश्मीर इनकलाबी काउंसिल ने भारत को खबरदार किया कि कश्मीरी भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। पाक फौज के कमांडर इन चीफ जनरल मूसा ने हाल ही में रिटायर होने वाले पाक फौज के तमाम अफसरान और सिपाहियों को ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म दिया। गवर्नर पंजाब मलिक अमीर मोहम्मद खान ने कहा कि फतह हमारा मुकद्दर है। अब्दुल मनम खान गवर्नर मशरक़ी पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी कि मशरक़ी पाकिस्तान में जारहियत पर भारत को बदतरीन नताइज भुगतना होंगे। पाक बहरिया के चीफ एडमिरल AR खान ने बहरी अफवाज के नाम पैगाम में कहा कि कौम के तवक्कुआत पर पूरा उतरें। पाकिस्तान नेवल शिप्स बाबर, खैबर बदर, जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां और टीपू सुल्तान को 7 सितंबर शाम 6 बजे द्वार के कालाइट हाउस से 120 मील और 293 डिग्री पर पोजीशन संभालने का हुक्म दे दिया गया। मेजर जनरल अख्तर हुसैन को कश्मीर में जोड़ियां सेक्टर में शानदार बहादुरी का मुजाहरा करने पर हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। सदर अयूब खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल योथान से मुतालबा किया कि कश्मीरियों से किए वादे पूरे किए जाएं। पाकिस्तान ने सिख बरादरी को यकीन दहानी करवाई कि मुक़द्दस मकामात की हुर्मत हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। यौम दिफा के मौके पर पाक आर्मी के ज़रिए तमाम हथियारों और जंगी साजो सामान की नुमाइश और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। बच्चों को असलहा और जंगी साजो सामान से मुतालिक आगाह किया गया। कराची और खारिया में असलहा और दूसरे जंगी साजो सामान की नुमाइश की गई। मुख्तलिफ अजला के आर्मी पब्लिक स्कूल्स के तलबा और तालिबात को जंगी साजो सामान की नुमाइश का दौरा करवाया गया। तलबा और तालिबात ने जंग में इस्तेमाल होने वाले आलात खुसूसन टैंकों में गहरी दिलचस्पी ली और उन पर सवार भी हुए। यौम दिफा के हवाले से बच्चों ने टैबलोज, मिली नगमे और तकारीर पेश की। वतन अजीज़ का सबसे बड़ा अस्करी एजाज़ निशान हैदर ऐसे बहादुर सिपाहियों को दिया जाता है जो मैदान जंग में मुल्क की खातिर गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी की बेमिसाल तारीख रकम करते हैं। इस तमगे का नाम शेर खुदा हजरत अली करमुल्लाह वजह के नाम पर रखा गया है। निशान हैदर कैसे तैयार किया जाता है ये बताएंगे आपको फाहद अजीज अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। 16 मार्च 1957 को वतन की खातिर गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों को मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर देने का फैसला किया गया। वजारत दिफा के हुक्म पर पाकिस्तान मिंट निशान हैदर तैयार करती है। इसे दुश्मन से छीने गए असलहा को पिघला कर बनाया जाता है, जिसमें 88% तांबा, 10% सोना और 2% जिंक शामिल किया जाता है। निशान हैदर 5 कोनों का एक सितारा है जो तोप की धात से बनाया जाता है। इन कोनों के किनारे तांबे और निकल के मुरक्कब से बनते हैं। इसमें चांद और सितारा हीरे का होता है, फीता रेशमी और सब्ज रंग का होता है, जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच होती है। पुश्त पर एजाज हासिल करने वाले के बारे में मुख्तसर मालूमात दर्ज होती है। तमगे की ऊपर वाली पट्टी पर जली हरूफ में निशान हैदर के अल्फाज कंदा होते हैं। निशान हैदर अब तक मुसल्लह अफवाज के 11 बहादुर जवानों को मिल चुका है, जिन पर यह कौम हमेशा से फख्र करती रहेगी। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
यौम दिफा के मौके पर जहां कौम ने भरपूर जोश और जज्बे से ये दिन मनाया, वहीं सानिया 9 मई के जिम्मेदारों को ये पैगाम भी दिया गया कि पूरी कौम अपने बहादुर अफवाज के साथ मुल्की दिफा के लिए मुत्तहिद है। यौम दिफा के मौके पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। फरहाना खान की रिपोर्ट। यौम दिफा के मौके पर सिविल सोसाइटी, अहले कलम और ताजिर बरादरी ने जिना हाउस का दौरा किया और बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। वफ्द ने जहां जिना के घर की तबाही पर तासुफ का इजहार किया, वहीं उन्हें इस बात का मलाल भी था कि शरपसंदों ने शोहदा की कुर्बानियों की भी परवाह न की और उनकी यादगारों की बेहुरमती की। वफ्द ने कहा कि 1965 में पूरी कौम जिस तरह पाक फौज के शाना बशाना थी, आज भी उसी तरह अपनी अफवाज के साथ है। बात आएगी यौम दिफा की तो हमारे जो पाक फौज है और हमारे जो गाजी हैं और हमारे जो शहदा हैं, उनका नाम हर सूरत आएगा। आज फिर वो वक्त आ गया है कि हमारे दुश्मन हमारे अंदर घुस के हम पे वार कर रहे हैं। जिस तरह ये कायद-ए-आज़म का साहब के साथ सलूक किया गया है, हमारा दिल रोता है और हम चाहते हैं कि ये इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मिटा देंगे या दुश्मन तेरे नामो निशान को हम, अगर तूने देखा मैली आँख से पाकिस्तान को, हम अपनी सांस तेरे नाम करते हैं, ए वतन तेरी अजमत को सलाम करते हैं। वफ्द ने शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इजलास हुआ। वज़ीर आला ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के लिए भर्ती का अमल शुरू करने का हुक्म दिया। इजलास में मुलाजमीन के लिए सर्विस रूल्स और ह्यूमन रिसोर्स कमेटियां तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना की जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में आइंदा समाअत तक के लिए तौसीह कर दी गई है। केस की समाअत इस्लामाबाद की मकामी अदालत के एडिशनल एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। बुशरा बीबी अपने मुकर्रा के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुई। तफ्तीशी अफसर की बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर करते हुए अदालत ने केस की समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। और अभी कुछ बात करते हैं भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर के, जहां काबिज भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला पुंछ में 2 बेगुनाह नौजवान शहीद कर दिए। केएमएस के मुताबिक फौजियों ने इन नौजवानों को जिला के इलाके मंडी में एक ऑपरेशन के दौरान शहीद किया। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर मकबूजा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने पाकिस्तानी परचम लहराए, जबकि आज़ादी पसंद तंजीमों की जानिब से पोस्टर्स चस्मा किए गए, जिनमें हक़ खुद इरादत के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करने पर पाकिस्तान को सराहा गया। कश्मीरी अवाम ने सन 1965 की जंग के पाकिस्तानी शहादा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। G20 इजलास और भारत की झूठी नमूदो नुमाइश जारी है, जिससे आलमी सतह पर भारत का मुनाफिकत से भरा मसनूई चेहरा खुलकर सामने आ गया है। भारतीय हुकूमत ने दिल्ली में कायम कच्ची आबादियों को ढांप कर G20 के पोस्टर लगा दिए हैं। वस्ती दिल्ली में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानें बंद कर दी गई और मरकजी दिल्ली के इर्द गिर्द नकलो हरकत पर पाबंदियों के साथ कंट्रोल रूम कायम करके मकीनों की नकलो हरकत भी महदूद कर दी गई, जिससे दिल्ली के मकामी लोगों को अगले 3 से 4 दिन तक इन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। उधर झूठी नमूदो नुमाइश के लिए मोदी सरकार ने G20 के ज़ायरीन के लिए तमाम पंप एंड शो, धूमधाम और चमक दमक का इंतजाम किया रखा है। ब्राज़ील की जनूबी रियासत रियो ग्रांडी डो सुल में समंदरी तूफान के बायस शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद बढ़कर 36 हो गई है। गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आने से लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। हुकाम के बकौल 52,000 से ज़ायद अफराद मुतासर और 5,500 के करीब अफराद घर छोड़ने पर मजबूर हुए। लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिर जाने के बायस अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वज़ीर-ए-आज़म डेनिस शेमिहाल और वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा से मुलाकातें की हैं। यूक्रेनी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को मज़ीद $1 अरब फ़ौजी इमदाद की फ़राहमी का ऐलान किया। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की हिमायत और इमदाद की फ़राहमी पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूक्रेन की इक़्तिसादी और फ़ौजी हिमायत जारी रखेंगे। यूक्रेन की जानिब से जून में रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू करने के बाद अमरीका के किसी भी आला अहदेदार का यूक्रेन का ये पहला दौरा है। जापान ने भी चांद पर कमंद डालने के लिए अपना एक और मिशन रवाना कर दिया। जापान ने चांद पर पहुंचने वाला 5वां मुल्क बनने के लिए अपना मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है। चांद के लिए रवाना होने वाला मिशन तानेगा शिमा स्पेस सेंटर से सुबह 8:42 पर लॉन्च किया गया। खराब मौसम के बाद गुज़श्ता माह 3 बार इस मिशन की लॉन्चिंग मौखर कर दी गई थी।
स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम नामी ये मिशन छोटे स्पेस क्राफ्ट पर मुश्तमिल है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के मुताबिक आइंदा बरस फरवरी में जापानी चांद मिशन मून स्नाइपर अपने लैंडर स्लिम को चांद की सतह पर मुकर्ररा मकाम के 100 मीटर के दायरे में लैंड करवाएगा। चांद के लिए जापान का एक मिशन नवंबर 2022 में भी नाकाम हो चुका है। कुछ दीगर अहम कौमी खबरें शामिल करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त से जमानत बाद गिरफ्तारी की समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस्लामाबाद की अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत होने के बायस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। अदालती अमले ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला की इस्तदा पर 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर की। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के मामले पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद डॉक्टर इरफान नवाज मेमन, SSP ऑपरेशंस मलिक जमील जफर, SP फारूक बुटर और मुतालिका थाने के SHO पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अदालत ने वकील कैसर इमाम को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। डिप्टी कमिश्नर, SSP, SPO और SHO ने सेहत जुर्म से इनकार किया। मुल्क भर में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहलम आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में रवायती जुलूस और ताज़िए बरामद किए जाएंगे और इस दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। रावलपिंडी में शहदाए करबला का जुलूस तेली महल्ला कमेटी चौक से बरामद होकर कदीमी इमाम बारगाह पहुंचकर खत्म होगा। जुलूस में शामिल अज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। लाहौर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहलम का जुलूस हवेली अलिफ शाह दिल्ली गेट से बरामद होगा। जुलूस भाटी चौक अंदरूनी लाहौर से बाहर आकर करबला गामे शाह पहुंचकर रात को इख्तिताम पसीर होगा। कराची में मरकजी मजलिस नश्तर पार्क में बर्पा की जाएगी, जिसके बाद जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पसीर हो जाएगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने दाता दरबार पर हाजिरी दी। सदर ममलकत ने हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़वानी की। और पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 82 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक की गई है। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान कहते हैं कि रवां साल लाहौर में 681 जबकि पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 1709 मरीज कंफर्म रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ मरीज सामने आए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि रवां साल रावलपिंडी में डेंगू के कुल 320 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज़ 20 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई, जबकि मुल्तान में गुज़श्ता रोज़ 5, फैसलाबाद में 4, गुजरावाला में 1, कसूर में 3, ननकाना, बहावलपुर, चकवाल, झंग और चिन्योट में डेंगू का एक मरीज सामने आया। उन्होंने कहा कि पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 93 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक है। जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 52 मरीज हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 2678 बेड मुख्तस किए गए हैं, जबकि 64 बेड्स डेंगू मरीजों के ज़ेर इस्तेमाल हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें और डेंगू की रोकथाम के लिए शहरी महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर और कराची के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, जो जिनियाती तौर पर अफगानिस्तान में पाए जाने वाले वायरस से जुड़ा है। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का कहना है कि माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस का पाया जाना निहायत तशवीशनाक है। वायरस की मौजूदगी से जाहिर होता है कि बच्चों को इस बीमारी से मुसलसल खतरा है। मुतासरा आबादियों का पता लगाने के लिए तमाम मुस्बत माहौलियाती नमूनों की तहकीकात करेंगे। निगरान वज़ीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर इस वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बनू में माहिरीन तैनात किए गए हैं, जिनको वायरस की मुंतकिली को रोकने के लिए दिसंबर तक का हदफ दिया गया है। वज़ीर सेहत ने वालिदैन से भी अपील की है और कहा कि वो अपने बच्चों को मुतादिद बार पोलियो के कतरे पिलवाएं और बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स भी मुकम्मल कराएं ताकि वो बीमारियों से बच सकें। मारूफ अदीब, ड्रामा निगार और दानिश्वर अशफाक अहमद को अपने मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। शुमाइला शब्बीर की रिपोर्ट। अशफाक अहमद ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज एक अफसाना निगार की हैसियत से किया और उन अदीबों की सफ में शामिल हो गए जो क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद भी उफक पर नुमाया रहे। एक मोहब्बत सो अफसाने और अफसाना गडरिया खास तौर पर उनकी पहचान है। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के लिए भी बेशुमार ड्रामे और फीचर लिखे। वो तवील अरसा तक रेडियो पाकिस्तान पर ब्रॉडकास्टर की हैसियत से वाबस्ता रहे। रेडियो का हफ्तावार प्रोग्राम तलकीन शाह तवील तरीन प्रोग्राम था।
अशफाक अहमद ने उर्दू में पंजाबी अल्फाज का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया और अपनी सकाफती इक़दार की पासदारी की। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए उन्होंने बेशुमार ड्रामे तहरीर किए, जिनमें एक मोहब्बत 100 अफसाने, तोता कहानी, उच्चे बुर्ज लाहौर दे, हैरत कदा और मन चले का सौदा खुसूसी शोहरत के हामिल हैं। अशफाक अहमद एक दानिश्वर और मुफक्किर भी थे। वो आम जिंदगी से ली गई मिसालों के जरिए गहरी फलसफियाना बातों और मसाइल तसव्वुफ को बयान कर जाते थे। जैसे बंदे का बंदा दारू होता है, इसी तरह से बंदों के छोड़े हुए निशानात वो किसी भी सूरत में हो, मरकज की सूरत में हो, तहरीर की सूरत में हो, धब्बों की सूरत में हो, वो हमें उतने ही प्यारे होने चाहिए जितने के इंसान हमको प्यारे। इस हवाले से उनका प्रोग्राम जाविया दानिश्वरों, अहले कलम और अवाम में यकसा मकबूल हुआ। वो एक ही अशफाक साहब थे, यानी इस पूरी सदी में मैंने ऐसा बाप देखा, ना ऐसा खामिन देखा, ना ऐसा राइटर देखा, ना ऐसा इंसान देखा। वो जो भी काम करते थे, जो भी लिखते थे, तो मुझे ज़रूर कास्ट करते थे, उसमें बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। और अगर आज हम एंजॉय कर रहे हैं ना टेलीविज़न को भी और रेडियो को भी, तो इनमें यानी सारी कोशिश और सारी मेहनत जो है ना वो अशफाक अहमद साहब की है। अशफाक अहमद को उनकी अदबी खदमात के एतराफ़ में कई एजाज़ात से भी नवाजा गया, जिसमें सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी, सितारे इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज भी शामिल है। अदीब अपनी तहरीरों की वजह से अपने पढ़ने वालों के जहनों में हमेशा जिंदा रहता है। यही वजह है कि आज भी अहले फहम फरासत अशफाक अहमद को याद करते हैं। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अभी आपको आगाह करेंगे मौसम की सूरत हाल से। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि मैदानी इलाकों में मरतूब रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले अगर नौकुंडी की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भावलपुर, बक्कर, दालबंदीन और जोहराबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।